So today is the story about rejections and how many 800 rejections from the venture capitalists nationally and internationally. But now today, Jawad Mahmood and Zain Farooq are running the MyTM in Saudi Arabia and in Pakistan. So please welcome Jawad Mahmood, who is the co-founder and CEO of MyTM Saudi Arabia, and Zain, who is the CEO and co-founder of MyTM in Lahore, Pakistan. How are you, both of you guys? Alhamdulillah, all good. Thank you. And I cannot start this interview without telling that these guys are the only winner of GITEX International 2020. Am I right? 2021. कैसे जीता आपने वो भाई? और वो भी after 800 rejections. I think 2018 में when Jawad and me we started MyTM, so the first investment we landed was from the Japanese. It was a Tokyo stock listed company. Okay. So it was very easy. So in we 2019. thought 2019. So we thought it was at a $2.1 million valuation, and it was just paper. So हमें लगा कि बहुत it's something very easy. So we did this functions and gave out iPhones to our staff. And you spent all yes, the money. we spent all the money in 8 months. But we were investing also with some other कि वो लोहे की baskets बनवा लेते हैं, trucks में invest कर देते हैं. खाना अच्छा खिला देते हैं. But at the end of the year, जब audit हुआ तो we were both in trouble because we were then responsible to fulfill all that money also, the loss that was there. After that, COVID came, 2019. उसी में at the end 2019 and 20. तो उस वक्त जवाद and me we decided कि ना हम में से एक को तो academically आगे जाना पड़ेगा entrepreneurship के अंदर as in legally study करके. तो जवाद क्योंकि technical already he is related to the technology scenario. I am totally from a different background, medical. तो मुझे कोई entrepreneur मानता भी नहीं था कि यार तुम डॉक्टर हो के फाइनेंस वाले entrepreneur क्या रहे हो. तो I had to enroll myself into national incubation centers. जवाद में फिर हम दोनों वहाँ पे courses भी करते थे और then founded institute. Then we became a portfolio company. उसके अंदर we did a lot of pitches. मेरे ख्याल जवाद मैंने अपने मिल में आके approximately we have made 127 version of the pitches. तो we started with the 127 of the pitches उस वक्त. तो हम लोग 27-28 मिनट की पिच से लेके तो 30 सेकंड्स तक की पिच जो थी वो all in your pocket. All in your pocket. तो हमें इतनी रिजेक्शंस की आदत थी, हम हर रोज मीटिंग सेट करते थे. ऑलमोस्ट आई थिंक 2200 ईमेल्स हमने की थी वेंचर कैपिटल्स को. ये जो हम 800 बताते हैं ये वो थे जिन्होंने जवाब दिया था कि हमें नहीं चाहिए. तो 5 मान गए थे आज. We are very much serious. Yes, 800 But there must be a time जब जवाब ने सोचा होगा कि यार अब नहीं करना. अच्छा ये जवाब खुद आई थिंक नहीं, मैंने आज तक नहीं सोचा. मैंने कहा था बस करना. नहीं, मैं आपको बताता हूँ. देखिए पता है एक्चुअली MyTM मैंने मतलब आई पुट दिस आइडिया इन फ्रंट. I can never do it without Jawad. Jawad came in as a technology partner also when we started MyTM. Now I think he runs it 80% more than I do. So we are equal partners in all senses. मतलब काम हो गया, troubles हो गई, इसके losses हो गए. Yes. तो हम own करते हैं इसे. मतलब हम पेपर पे नहीं, हम बस we know कि यार अच्छा if I'm not there anymore because जिंदगी का भरोसा नहीं था, he's there, we know he's going to take care of things and he believes of you guys 2019 and GITEX. Yes. 2021. ज़्यादा मेहनत किस में गई थी? अच्छा, इसमें GITEX पे आई वुड से कि जो सारा पिचिंग कंपटीशन था, इट इज़ ऑल द क्रेडिट गोज टू जैन. क्योंकि जैन का क्योंकि बैकग्राउंड है, ही हैज़ बीन अ डिबेटर, पब्लिक स्पीकिंग एंड Very obvious. यस गवर्नमेंट कॉलेज असिस्टेंट सेक्रेटरी. तो इस वजह से वो जो पेन और जो पैशन इसके अंदर था ना, वो जीतने के लिए, वो मेरे अंदर नहीं हो सकता था. क्योंकि उसमें रीज़न ये है कि मैं नेचुरली ना आई एम अ लिटिल बिट लेजी. मैं आई ट्राई टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फॉर द बिगेस्ट प्रॉब्लम. तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है. मुझे आदत है चांद रात पे शॉपिंग करने की, एट द एंड बस एंड पे काम करने. आग लग जाए तो फिर सोचने हाँ, कि अब क्या क्योंकि मेरे इसके भाई की शादी भी होती है, बिल्कुल बस मेहंदी से पहले वेस्ट कोट ले जाएगा. तो मुझे प्रेशर में काम करने की ज्यादा आदत है. प्रेशर के अंदर मेरा दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, जिसमें मैं शॉर्टेस्ट वेज निकाल लेता हूँ. और प्रेशर के टेंशन वो मुझे नहीं आज तक समझ है कि प्रेशर में काम करने का शौक है कि टेंशन में काम करने का शौक है. Again, my question was GITEX और आपने जो फंडिंग की थी 2019, ज्यादा मेहनत कहाँ की थी आप? मेहनत GITEX पे GITEX बहुत नॉट
क्योंकि अच्छा वो पैसे that was a easy money जो हमने 2019 में मिला, that was a very easy money. अच्छा, और हमें पता नहीं जाइटेक्स है, और हमें ये भी नहीं पता था जाइटेक्स क्या होता है. You know, Jitex means 100 countries. You know that how many 760 startups were competing? Guys, 760 लोग उसमें से ना 11 जीतते हैं सिर्फ अपनी कैटेगरी में. हर एक 11 कैटेगरीज होती है. तो हमें किसी ने कहा यार जीत जाओगे ना तो कुछ बन जाएगा तुम लोग. और $4,000 प्राइस थी. ठीक है. इट वाज और उसका $4,000 हमारे लिए बहुत पैसे होते थे. ठीक है. हम क्राउन प्लाजा में रुके जाके, और क्योंकि इग्नाइट के पैसे थे, लेकिन इग्नाइट वालों ने उसी साल पैसे हमें नहीं दिए, पहले जाने से बाद में दिए. तो वो हमारी ना, बल्कि इस पे ना हम फोन करते थे, सर पैसे चाहिए पैसे. तो वो कहते थे यार तुम किस तरह की कंपनी, तुम्हारे पास 4 लाख रुपया भी नहीं है. तो वो हमारी उससे ना दोस्ती बड़ी बन गई. इसलिए वी बिकेम वेरी क्लोज टू इग्नाइट एंड दे न्यू अस एग्जैक्टली हाउ ब्रोक वी वर. एंड यू नो, सो मेरे ख्याल से कभी कभी आपको ना वल्नरेबल होना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हाँ ये मेरे पास नहीं है पैसे, बट यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस. और मेरे ख्याल से बहुत मैच्योरली इग्नाइट टेक्नोलॉजी फंड ने उसको ना हमें हैंडल किया. हम अपनी सक्सेस में जो सबसे बड़ा जो हमारे लिए सपोर्टिव हैंड था ना, दैट इज इग्नाइट टेक्नोलॉजी. बहुत बड़ा है. उसमें आसिम शहरियार who was the CEO at that time, he was very supportive. अब ये अदील शेख साहब, he was there, he was very supportive. उमर है, तो हम इनको बड़ा क्रेडिट देते हैं कि they have been. नदीम साहब का तो बड़ा क्लासिक सेंटेंस है ना कि अपने भरा को पैसे लेके चला जाओ, लेकिन जाओ सो और फिर आप चले भी तो गए. चले गए. डेफिनेटली आई एम वेरी थैंकफुल. सो 2019 का जो लॉस था, that you spent all the money within like 19 20 21 में जब 3 साल और किया तो फिर आपने पैसा नहीं उड़ाया. अच्छा, हमने लॉस कैसे किया? लॉस की रीजन ये थी कि जब कोविड आया ना, हम लोगों ने इवन देयर वाज नो बिजनेस, हमने कोई एम्प्लॉय फारिग नहीं किया. ये बड़ा ना काइंड हार्टेड आदमी है. मैं थोड़ा सा कड़वा हो जाता हूँ. मैं मतलब एक बंदा भी हमने ले ऑफ नहीं किया. हमने सबको घर बिठा के सैलरीज दी. इवन हमारा सब कुछ बिक गया, लेकिन हमने उनको नहीं फारिग किया. एंड मी एंड जवाद वर बेसिकली स्टिल वर्किंग. वी वर ट्राइंग टू जनरेट मनी फ्रॉम अदर यू नो वर्क्स, कंसल्टेंसीज, यू नो ऑपरेशंस दैट वी वर रनिंग इन सम अदर फील्ड्स, ताकि यहाँ के पैसे पूरे हो जाए. तो वी वर मेकिंग श्योर. उस वक्त भी हमारे पास 25-30 का स्टाफ तो मेरे ख्याल से था. 40 का स्टाफ. बिल्डिंग तब भी हमारे पास 4 फ्लोर की थी और 25 वो था. वो सब तो वो हमने तकरीबन 40-45 लोग थे, उनको रिटेन किया, नहीं किसी को ले ऑफ. I want to know when you got to know कि आप लोगों ने जीत लिया है, तो क्या आंसू आए थे, हंसे थे? No, there's a recording. आप YouTube पे रिकॉर्डिंग देखें, प्रॉपर लोगों ने वीडियोस बनाई डिफरेंट एंगल से. तो हम बड़े एक्साइटेड थे. मतलब हमें $4,000 ऐसे लगा जैसे $4 मिलियन. हम गले मिले, हम सिर्फ जाके बड़ा यस या वो ना सारे की यार क्या ठीक है जीत गया. बट पाकिस्तान के लिए पहला टाइटल था. वी आल्सो थिंक फिर वो कि यार इतना बड़ा टाइटल होगा. पाकिस्तान आए तो हमारी पहले हमारी अपनी कंपनी ने हमारा बड़ा अच्छा जो है ना वो वेलकम किया. अच्छा मतलब कुछ होगा. फिर जियो वालों ने रीच आउट किया, एक्सप्रेस ने रीच आउट किया, दुनिया ने डिस्कवर पाकिस्तान. अच्छा हम फिर हमारे ना वो आना शुरू हो गए अरब न्यूज में, मैग्नेट में, इवन ब्लूमबर्ग. हमने कहा यार मतलब ये कुछ है ये. दिस इज समथिंग दैट वी हैव अचीव्ड. और फिर कुछ इन्वेस्टर से पहले अरबिक इन्वेस्टर आया, उसने कहा यार बस पिच डेक भेजो एंड सेंड अस द you know term sheet and we will send you the money. हमने कहा यार इस तरह कौन इन्वेस्ट करता है. तो संडे को उसने हमें कॉल किया, पैसे भेजने चेक कर लेना. कभी तो साइन भी नहीं हुई. हो जाएगी साइन, बस ठीक है हमने तुम्हारी पिच देख ली थी, तुम लोग जीते, हम जेटिक्स विनर्स में पैसे लगाते हैं. So that means that going to a platform is this. Oh yes, very important. मैम वैलिडेशन हम कहते हैं, वैलिडेशन इज एवरीथिंग. People are not interested in knowing के कौन है कौन नहीं है. ये जीते थे, इनके पास ये टाइटल है. नाउ लोग एग्जाम देते लो. हम एक्चुअली अगर आप ये ओवरऑल सिनेरियो देखें ना, तो जितना भी इन्वेस्टर है, दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड सो फार, वो टीम पे या बंदों पे पैसा लगाते हैं. वो दे हैव अगर तो प्रॉपर जो आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और प्रॉपर जो जिसने अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, दे सी योर पर्सनैलिटी, दे सी व्हाट काइंड ऑफ पैशन यू हैव, वो उसके ऊपर पैसा लगाते हैं. वो कहते हैं यार व्हाट एवर कंपनीज पीछे जो मर्जी टीम है, जो मर्जी, वी डोंट केयर. ऑनेस्टी, एग्रेशन, ये दो चीजें. तो लेट्स टॉक अबाउट द डार्क साइड्स ऑफ विनिंग नाउ. वर देयर एनी? वी हैव नॉट been able to find any. I think हम लोगों को या उसके बाद आपको कुछ बहुत अच्छा तो नहीं अपना आप लगने लग गया? नहीं, उसके बाद 6-8 महीने तो हमें तब भी लगे थे. मतलब you know after winning it was no, it was October and we got investment in December. दिसंबर में आ गई थी. फिर तुम्हें याद है दिसंबर में, अप्रैल में हम फिर ब्रोक ही होने वाले थे. जब हमने अप्रैल में हम ब्रोक होने वाले थे, फिर हमने जून में एक डील क्लोज की. यस वो हम प्रेशर बहुत था ना. अब लोग कहते थे यार अब जीत गए हो तो अब तो अमीर होना. दिस वाज द डार्क साइड. एक्सपेक्टेशंस ज्यादा आ गई, एक्सपेक्टेशंस बहुत हो गए. डर गए थे हम. अभी भी डर जाते हैं. अभी भी ये जिस तरह नए प्रोजेक्ट्स करते हैं
तो दे लुक लाइक वेरी लुक्रेटिव प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हमारी जो टीम है ना माशाल्लाह इट्स ऑलमोस्ट 200, उनको आज भी मेरे ख्याल से हमारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स का आइडिया नहीं, वो ये कहते हैं अच्छा एक्चुअली हमारे जितने इन्वेस्टर्स हैं और जिनको हम न्यू पिच करते हैं उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि वी आर डूइंग टू मच, लेकिन दे आर नॉट इन्विजनिंग व्हाट वी आर इन्विजनिंग। हमारा विजन बड़ा सिंपल है। इफ यू गाइज नो देयर वाज अ बैंक, इट इज कॉल्ड HSBC, नाम आपने सुना? नो 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 नो, HSBC like with the red and it's a white. Hong Kong, Yes, you अच्छा इनका जो था वो बेसिकली इनका मेन जो स्लोगन था दैट इज लोकल बैंकिंग इंटरनेशनली। अच्छा अब वो नॉर्मली टारगेट कर रहे हैं कॉर्पोरेट्स को, वो टारगेट कर रहे हैं बड़े बिग क्लाइंट्स को। हम उसी स्लोगन को लेके जाना चाह रहे हैं लोकल बैंकिंग इंटरनेशनली को फॉर द मीडियम स्केल और फॉर द लोअर स्केल, एनविजनिंग के हम लोगों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन क्रिएट करनी है जो अभी तक पाकिस्तान में हम लोग नहीं कर सके। दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, अगर आप 7 बिलियन की पॉपुलेशन को देखें तो मोर देन 50% अभी भी आपकी अनबैंक्ड है और ये अंडर सर्व्ड है। एडल्ट तो 1.6 बिलियन अनबैंक्ड, 1.9 बिलियन अनबैंक्ड है अभी तक। हाँ, और टोटल जो एडल्ट है वो है 3.6। Even whenever we are so talking more than आप ये about देखें Pakistan becoming a 1 trillion economy, तो बात यही होती है कि undocumented है ही सारी अनडॉक्यूमेंटेड। $450 बिलियन मेरे ख्याल से अनडॉक्यूमेंटेड। अच्छा अब इसमें मेन हमारा विजन क्या है कि जो चीज़ मैंने वहाँ पे देखी, एक वर्कर पाकिस्तानी वर्कर सऊदी अरेबिया में काम करता है, वो शायद यहाँ पे किसी एक बैंकर से ज्यादा कमा रहा होता है। एक बैंकर है, उसकी सैलरी अगर 3 लाख है तो ही इज अर्निंग 4,000 5,000 रियाल, तो वो उससे ज्यादा कमा रहा है। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान में आएगा उससे पूछेंगे भाई तुम कौन हो, तुम्हें तो ना क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, तुम्हारा बैंक अकाउंट के लिए तुम्हारी हमें सैलरी स्टेटमेंट चाहिए, तुम किधर जॉब कर रहे हो। ही हैज नथिंग हियर, इवन वो पाकिस्तान हर साल पैसे भेज रहा है। हाँ, तो अब इस चीज को हमने एनविजन करते हुए व्हाट वी हैव प्लान, जिसका वन ऑफ द प्रोडक्ट इज अ सलिस कार्ड। सलिस इज नॉट अ वॉलेट और समथिंग, इट इज गोइंग टू बी अ नेटवर्क। इस नेटवर्क में पूरी दुनिया के वो लोग जिन जिन कंट्रीज को जो हमारे नेटवर्क का पार्ट होंगे और जो इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर इंडिविजुअल आ रहा है, दे विल हैव द ऑप्शन। जैसे मैं बीइंग अ पाकिस्तानी सऊदी अरब जाता हूँ तो आई कैन अवेल ऑल दोज फैसिलिटीज जो एक सऊदी वहाँ का सऊदी नेशनल अवेल कर सकता है। तुमने एग्जांपल ये दो कि अगर इनके पास सलिस कार्ड आ जाता है, ये इस दफा हज उम्रे पे जाती हैं, वैसे सलिस कार्ड तो इनको क्या फायदा? जैसे फॉर एग्जांपल यू आर टॉकिंग अबाउट सलिस कार्ड, उम्रा का the card is available to all other overseas Pakistanis too. For everyone, for all Pakistanis होना जरूरी है अभी के लिए। अच्छा, okay. For all Pakistanis. That is only for Hajj and Umrah. No, all for all Pakistanis. अब आप मिसाल, लेकिन अभी हम उसको टारगेट करें जस्ट फॉर सऊदी अरेबिया। उसमें क्या होगा कि आप सऊदीया जाती हैं, आपको अल बेक पे जैसे पाकिस्तानी कार्ड के ऊपर डिस्काउंट मिलेंगे, आपको उधर रोमांस की एक ब्रांड है, आपको खजूर आप बाय करने जाती हैं, आपको उसके ऊपर डिस्काउंट्स हैं, आप क्रीम पे आप जाती हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन पे डिस्काउंट्स हैं, आपके पास एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस हैं। ये सारी फैसिलिटीज हम लोग दे रहे हैं, कैशबैक दे रहे हैं। एग्जैक्टली, लेकिन उस पे कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। अच्छा, अभी मैं नॉर्मली जैसे जाता हूँ, मुझे एक्सचेंज रेट 4% पड़ता है, उसके ऊपर मेरे 5.5% के करीब टैक्सेस हैं दैट आई हैव टू पे। और वो फॉरेक्स फी 4% पड़ती है, एक्सचेंज रेट अलग पड़ता है। नहीं, दैट इज फॉरेक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेक्स। अच्छा, ठीक है। तो उसके ऊपर मुझे इतना टैक्स पड़ता है, तो उसको हम लोगों ने 1.5% पे ब्लॉक करवाया है कि हमारे जो हाजी जितने जा रहे हैं 1.5% पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं। तो फिर why should I be going? I won't be using other banks then. Yes. Because it's only 1.5%. Yes. It's more convenient. और आपके सारे पाकिस्तान 24/7 आपके सारे पाकिस्तानी पैसे भी रियाल होंगे। हाँ, फिर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप वहां पे लैंड करती हैं और आपके पास नहीं है कार्ड, आप हमारे काउंटर पे जाएंगी, यू कैन सर्च ऑन द गूगल, आप हमारे काउंटर पे जाएं, उसी वक्त रियल टाइम आपको कार्ड मिल जाएगा। So this is something that this is always depicting a proud Pakistani. Yes. कि अगर हम दुआ करेंगे अब ये we pull it off on अच्छा, अब इसी की अगर आप थोड़ी सी मैं आपको डार्क साइड बताऊं, लास्ट ईयर पाकिस्तानी जितने हज और उम्रा के लिए, उम्रे के लिए 5 बिलियन पाकिस्तानी गए, ह्यूज नंबर, और हज के लिए हमारे 1.5 लाख ज़ायरीन गए, ठीक है, इस दफा 187 जा रहे हैं। अच्छा, अब उसमें अगर मैं बताऊं 25 रियाल ऑन एवरेज पर पर्सन ने डिजिटली स्पेंड किया, 25 रियाल ओनली ऑन कैश। यस, तो अब सऊदी मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा ये इस वक्त वो है पेन पॉइंट है कि यार पाकिस्तानियों को तो ये हम लोग इंडोनेशियंस को सरपास कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, वॉल्यूम्स।
कि इंडोनेशियंस पहले ज्यादा आते थे, अब हम पाकिस्तानी ज्यादा जा रहे वैसे हैं। जो है मुझे ये भी लगता है कि उनको ये भी डर है कि जो 25 रियाल डिजिटली खर्चे तो बाकी फकीर ना ले जाते हैं। ये भी हो सकता है कि वो पैसे जो लूटे जाते हैं अनडॉक्यूमेंट। तो एक्चुअली इस चीज को हम ये चाह रहे हैं कि इस नेटवर्क को इस तरह से हम लोग प्लान आउट करें कि आप जैसे बीइंग पाकिस्तानी नेशनल वहां पे जाती हैं और आपको एक अच्छी सी सोने की चेन पसंद आ गई एंड यू वांट, पैसे नहीं है, तो मैं आपकी पाकिस्तानी हिस्ट्री के ऊपर वहां पे आपको बाय नाउ पे लेटर की फैसिलिटी दे दूं। फॉर एग्जांपल मेरे पाकिस्तानी एचबीएल में जिसका कार्ड मेरे पास नहीं है, 10 लाख रुपया पड़ा है तो मैं आराम से वो चेन ले सकती हूँ। अगर आपके पास नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं आपकी सिर्फ सैलरी हिस्ट्री देखूंगा, डिजिटल यूसुफ का डिसीजन लेंगे और आपको बाय नाउ पे लेटर मिल जाएगा, यार 3 किस्तों में पे कर दो, 4 में कर दो और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। सोचो फिर अगर मतलब फिर ये जुगाड़े भी तो लगाएंगे। नहीं, जुगाड़े लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। देखिए एक्चुअली देखिए, पहली बात लोगों को ना बैंक का, अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक का फंक्शन क्या होता है, क्या फंक्शन है आपके ख्याल से? नो, लेंड करना, सॉरी, यस, लेंड करना, यू आर राइट, पैसे देना, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में आप एक आम आदमी जो पैसा बैंक में नहीं रखवाता उससे पूछे बैंक का क्या फंक्शन है, वो जी पैसे जमा करते हैं जी, वो तो हमारी टैक्स हिस्ट्रियां निकालते हैं। देखिए, बैंक डेट क्रिएट करेगा, कैसे क्रिएट करेगा? ये जो प्रोडक्ट्स मार्केट में निकल रहे हैं, आपको एक कैमरा पसंद आ गया, आपको मोबाइल फोन पसंद आ गया, अब मैं आपको कह रहा हूँ यार तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुमको 3 महीने के सेविंग करके लूंगा। आप कहते हैं, एक कंपनी आ गई माइटी, वो कहती है कि ये फोन पाकिस्तान में मिलता नहीं है, यहाँ पे मिलता है, 3 महीने की जगह अभी पैसे जितने हैं उतने करवा दे के 3 महीने की किस्तें करवा लेता हूँ। तो आपका डिसीजन बनाना, लालच देना इज द बिजनेस। लेकिन देखें, जब वो मोबाइल बिकता है ना, तो मैंने भी तो मर्चेंट से पैसे लेने हैं ना, तो मेरा रिस्क कुछ ना कुछ कवर हो जाता है। लेकिन आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि आप पैसे लेके ना भागें? उसके अंदर AML है, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग है, आपकी रिपोर्ट्स हैं, पीछे CIB रिपोर्ट्स हैं। आप पाकिस्तान वो कहते हैं कि पैसे ले लिया कितने नस हो गए, तो वो ये वाला सीन यहाँ पे भी होता है। इट्स सेफ फॉर यू। मतलब आप नहीं डिफॉल्ट कर सकते। मैं डिफॉल्ट करता हूँ, जवाब डिफॉल्ट करता है, पूरा 1 साल मेरा और जवाब जैसा बिजनेसमैन जो है वो पाकिस्तान के अंदर गाड़ी, घर, कर्जा, क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकता क्योंकि ECI भी खराब हो गई। अगर सिर्फ लोन राइट ऑफ भी करवा दें आप उसके बाद भी, हाँ, तो 1 साल, और वो 1 साल मैं सर्टिफिकेशन कोई नहीं ले सकता। अब आप इसी को वाइस वर्सा करें, वो पाकिस्तानी जो वहां पे वर्कर है, अब उसको फोन आता है, वो पुत्र अपना बहुत गर्मी है, AC चाहिए, अब 2 लाख का AC है, नहीं ले सकता, तो हम क्या करेंगे? हम उसे कहेंगे 4 इंस्टॉलमेंट्स पे ले लो, तुम्हारी उधर की हिस्ट्री के ऊपर, और वो पैसे हम ऑटो डिडक्ट वहां से कर लेते हैं, और हमारे पास अकाउंट खोलो और ले लो। तो दिस इज द काइंड ऑफ फैसिलिटी जो हम देना चाहते हैं, नॉट जस्ट पाकिस्तानीज, हम उसमें इंडोनेशियन, मलेशियंस, बांग्लादेश, इंडिया, सब मुल्कों को लाना चाह रहे हैं कि that is your future plan. That is our future अभी plan. तो right now you are more focused on this card. Yes. With Hajj and Umrah. Yes. That's your brain. देखिए ना, घर से बात आती है 35,000 रुपया भाईजान खर्चा आ गया घर में, किस चीज का है वो बेचारे को पता नहीं। बिजली का बिल पे हम डायरेक्ट करवाना चाह रहे हैं यहाँ से, वेरी गुड। रेमिटेंस फोकस, उनकी टैक्स पेमेंट, अगर कोई प्रॉपर्टी पेमेंट्स हैं वो डायरेक्ट वहां से वो कर सकते हैं। स्कूल की पेमेंट कर दो, यूनिवर्सिटी की पेमेंट डायरेक्ट कर दो, पानी का बिल डायरेक्ट दे दो, क्योंकि वहां पे जो बंदा मेहनत करे जब वो वापस आते हैं, दिस इज द कंप्लेंट दैट वी हैव सीन। आपको पता है 2.3 मिलियन है ना शेख, मेरे ख्याल से 2.8 मिलियन पाकिस्तानी है, और मजदूर कितना होगा? मेरे ख्याल से उसमें 70% मजदूर है। Guys, my question next is, so you are giving me 1.5% only, मतलब you are taking 1.5% only, जबकि ओवरऑल रेट 4% चल रहा है, उसके ऊपर भी टैक्स बढ़े, तो क्या वो आप अपनी जेब से डालेंगे? नो, व्हाई? So no, then explain how you guys will be मैं बताता हूँ, अभी आपकी जेब से पैसा ज्यादा जा रहा है, अभी आपकी जेब से ज्यादा पैसा जा रहा है ना, तो वो हम चाह रहे हैं कि यार वी शुड क्रिएट कन्वीनियंस एंड ईज फॉर एवरीवन। वो आप अभी मतलब हम अभी ये 4% पे बात नहीं ठहरती जो है। जब आपका कार्ड किसी मशीन के ऊपर स्वाइप किया जाता है, उस पे अलग आपकी परसेंटेज नहीं कटेगी, वो मर्चेंट के पैसे कटते हैं, जिसको हम बोलते हैं MDR। तो हम वहां से भी कमा रहे होंगे और यहाँ से भी कमा रहे होंगे, सिर्फ हम कन्वीनियंस क्रिएट करें। वॉल्यूम्स जब हमारे पास आ जाएंगे ना ज्यादा, तो ये इट इज नथिंग। Do you think that you guys are doing enough advertisement to tell people that this is what? No, we are going to start advertisement. हम लोग अपनी होर्डिंग, स्ट्रीमर, ये सब कुछ लगा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जा रहे हैं। तो this is what we are going to do inshallah in coming 1 week. You guys should be having some stop there at airport as well. Yes, definitely. We are talking to civil aviation. When I went for Umrah, I remember कि हमारा चीचा वतनी का 20 लोगों का गया होता है, तो बट जी गए होते हैं, तो उनको कौन समझाएगा? मैसेज को समझाना। अच्छा, उसके लिए मैसेज के लिए what we have planned so far कि जो हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं, we are targeting them, और ट्रैवल एजेंट्स को वी आर इंसेंटिवाइजिंग देम कि भाई आप कार्ड सेल करोगे, डिपॉजिट लाओगे, तो हम आपको कुछ ना कुछ उस पर इंसेंटिवाइज करेंगे।
तो उस पर दे आर वेरी हैप्पी एंड दे हैव शोन अ कीन इंटरेस्ट, क्योंकि ट्रैवल एजेंट्स का भी प्रॉब्लम है ना, उनके जो अब ये जो जाएंगे हज गाइड्स यहाँ से जाएंगे या जो खादमीने हज जाएंगे, वो 800,000 के करीब तो वो बंदा है, उन्होंने भी तो पैसे यूज़ करने, वो कहते हैं सबसे पहले तो हमें दें। और अगर उन्हें अवेयरनेस होगी और उन्हें फायदा होगा तो वो दिल से बाकियों को एग्जैक्टली। देखिए ना मैडम, देखिए वैलिडेशन बड़ी जरूरी होती है। अब देखिए पीछे एक बैंक है जेएस बैंक, इट्स वन ऑफ द टॉप 5 बैंक्स इन पाकिस्तान। मास्टर कार्ड है, इट्स वन ऑफ द टॉप 2 स्कीम्स इन द वर्ल्ड। तो हमारे पास वी आर वर्किंग विद द बेस्ट पीपल। तो वो जो वैलिडेशन क्रिएट हो रही है ना, जेएस जिंदगी के थ्रू आ रहा है, मास्टर कार्ड अपने पूरे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के साथ आ रहा है, हम माईटीएम एज अ प्रोप्राइटरी लेकर आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी मिडलवेयर, एवरीबॉडी इज पुटिंग देयर एफर्ट। आपको पता है ये प्रोडक्ट टोटल 3 महीने के अंदर रेडी हुआ है। लेकिन इसके ऊपर वर्किंग, इसके ऊपर बहुत एग्रेसिव वर्किंग है, और इस पे हम लोग जो है ना वो स्पेसिफिकली जिंदगी नुमान नजर उसको हम स्पेसिफिकली वी वांट टू थैंक हिम कि वो उसने हमारे पे ट्रस्ट किया। बहुत जबरदस्त। और उसकी पूरी टीम, मतलब पूरी टीम, चीफ बिजनेस ऑफिसर उमर हो गया, आई थिंक सदफ हो गई, दे ऑल आर एवरीबॉडी, अवैस, एवरीवन। और हमारी टीम में से भी 7 हैं, इफ्तिखार हैं, एवरीबॉडी हैज बीन वर्किंग वेरी हार्ड। Jawad, where do you see my team Saudi Arabia next 5 years down the road? We will be the first Islamic payment scheme. इंशाल्लाह। अच्छा, आप हमारा अगर टाइमलाइन देखें ना, तो हमने ना अपने इन्वेस्टर्स को लिखे दिया था 24-25 में हमने 2 चीज़ें लॉन्च करनी है, पेमेंट गेटवे एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म एंड द अदर वाज सलस। सो वो कहते थे यार अच्छा अभी जब हम 25 में इनसे पिच डेक मंगवाएंगे ना तो ये 26 में जा चुका होगा। तो हम लोगों ने 2027-2028 में वी वांट टू बिकम द स्कीम, और इसके लिए मेरा और जवाद का हमारा पर्सनल टारगेट है कि 40 साल बिफोर वी रीच 40, दैट्स इन द नेक्स्ट 4 years, we want to make sure that we make this a reality, and then we retire and aggressively see from नहीं, then you see मेरा और जवाद का एक बड़ा ख्वाब है हमारा 50,000 एम्प्लॉई हो। अब वो कैसे होना है, फैक्ट्री लगा के होना है, कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल के होना है, 50,000 पूरा करना है, तो फिर हम उस मिशन में लग जाएंगे। नहीं वो तो फिर तामरक जब मर्जी तक, तो इसलिए वी वांट टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म जो फिर कल को बना सके। You already did ना, 2021 you were 20-25 people, now 2024 you are 200 plus, so already मतलब चलो। and 2000 अच्छा ये भी कंडीशन थी कि मिनिमम सैलरी भी 5 लाख होनी चाहिए, तो ये तो हम लोगों ने फिर काफी मतलब वो कहते हैं। और 2021 में अगर आप इसको देखें तो वी हैड 0 रेवेन्यू, और करंटली वी हैव पास 2 billion rupees रेवेन्यू में। नेट रेवेन्यू जो हमारा है मतलब प्रॉफिटेबिलिटी हमारी 50 million प्लस थी लास्ट ईयर। इस साल फर्स्ट क्वार्टर की हमारी निकली है कोई अराउंड 14.8 मिलियन निकली है, एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको। और इस साल हमारा प्लान है कि हम इसको एटलीस्ट जो है ना 100 मिलियन की अपनी FBR वाले ना सुन नहीं हम टैक्स पेयर्स, नो इशू, बड़े हैवी किस्म के टैक्स और मैं और जवाद भरते हैं। Jawad, where do you see Zain, where do you see my TM Pakistan 5 years down the road? अच्छा, honestly this question was asked from me from Jack Ma जो Ali You met him? We have met him in Really? so Jack Ma ने एक like you know he asked the same question and I said I want to become a bank. At that time we never knew what a bank is, तो वो एक बचपना सा था, और वो आई थिंक उसको काफी जवाद ने बड़ा पॉलिश करके ना उसको एक स्कीम में कन्वर्ट कर दिया। Very good. कैसे यार इंस्टेड बैंक तो खाली एक मुल्क में होगा या उसकी कुछ ब्रांचेस, व्हाई नॉट वी बिकम समथिंग दैट कैन वर्क विद एवरी बैंक इन द वर्ल्ड, और लाइक यू नो एंड ऑल द कस्टमर्स कैन यू नो creating convenience for everyone, whoever the मतलब a human being should be। फिर हम नीच में जाना चाहते थे, तो फिर वो ना बैक जो कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, तो वहाँ से आके ये जो हज एंड उम्रा का एक एरिया था वो पकड़ा, और फिर ज़रा हमें किसी ने जब ये कहा ना कि आप 14-45 years में दिस थिंग हैज़ नॉट हैपेंड, तो हमारे लिए ना वो चीज़ बड़ी वो हो जाती है मोटिवेटिंग की यार बाकी 1445 साल हो गए हज, यू नो, और किसी ने कभी भी कुछ ऐसी कन्वीनियंस का नहीं। अच्छा, लोगों ने ट्राई किया थोड़ा सा, मैं आपको बताऊंगा, पीपल ट्राइड, लेकिन उसमें आप लोग जब ट्राई करते हो ना, आप मैसेज की प्रॉब्लम को भूल जाएं। आप सिर्फ देखें वो था ना अपना जो फ्रांस की प्रिंसेस थी, वो कहती थी मुझे भूख लगी है तो फिर सबको भूख लगी है, अगर मेरा पेट भरा हुआ तो सब, ये एक नॉर्मल मेंटेलिटी है हम बंदों की ना। अगर आप एक ग्रुप में जा रहे हैं ना, तो जो ग्रुप लीडर है जब तक वो नहीं थकेगा वो नहीं सोचेगा पीछे को थका है कि नहीं थका हुआ। 10 रुपए की बोतल है, महंगी थोड़ी है, मतलब ये आपने हमने खुद भी सुना है पाकिस्तान में भी। तो एक्चुअली ना हम ज्यादा ओवरऑल हम लोग सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा होते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा ये बात करूँ ना कि
अगर हमारे पास जैसे मैंने आपसे बात की कि वी वांट टू बिकम द फर्स्ट इस्लामिक पेमेंट स्कीम ऑफ द वर्ल्ड, तो थोड़ा सा आपको वो लगता है कि वी आर मोर पैशनेट, लेकिन दिस इज समथिंग हम लोगों ने अचीव किया है और करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम लोग उस पे दूसरे तीसरे स्टेप पे पहुंच चुके हैं। और जैसे जैन ने कहा ना कि ये अभी 1445 ईयर्स पे पहले नहीं हुआ, तो लोगों ने वो एक प्रेशर बड़ा अजीब अल राजी इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप जिन्होंने ये किया, लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं सोची कि यार हम ये कर तो रहे हैं, लेकिन जिस नेशन को टारगेट करें क्या वो इसको एक्सेप्ट भी करेंगे कि नहीं, और अगर वो वहां पे आ जाते हैं तो आपने ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस पे कैसे मैनेज करना है। हमने टारगेट ये किया है कि वो हर बंदा, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग जाते हैं जो शायद कार्ड को डिजिटली यूज़ भी ना कर सकें, जिनको एटीएम की पिन ना डालनी आती, लेकिन उन लोगों की कन्वीनियंस के लिए हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे हम लोगों ने कियोस्क लगा दिए कि यार आप हमारे एजेंट पे आके आप अपनी वो सारी 5-6 दफा ट्राई कर लें, उनकी ट्रेनिंग्स हम लोगों ने रखवा दी। तो ये चीज़ें लोगों ने नहीं की कि कन्वीनियंस उनको इस तरीके से क्रिएट की जाए। So now let's talk about the IT industry or fintech industry, image of Pakistani fintech industry globally. पाकिस्तानी फिनटेक इंडस्ट्री को अगर ग्लोबली देखें, अगर मैं सबसे पहले जीसीसी मार्केट की बात करूं, इंडियंस छाए हुए हैं हर जगह पे, इवन आईटी इवन फिनटेक। आप जितने भी बड़े बैंक्स हैं, अच्छा उसमें सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि एक इंडियन जो है वो सिर्फ इंडियन को सपोर्ट करता है, एंड दे आर वेल कनेक्टेड, दे आर सबमिसिव, सुपर सपोर्ट। हाँ, मेरा भाई आया है, मेरा भाई है नहीं आप, अच्छा अनफॉर्चुनेटली वो लोहे के गॉर्डर है, हमारे हम जो है ना हम बांस के डंडे हैं, सो दैट्स द डिफरेंस। तो हमारे लोग जो है ना वो उस तरह से सपोर्टिव नहीं है, उसमें थोड़ा सा आई डोंट नो क्या वजह है, लेकिन ये चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम लोग कॉम्पिटेंस वाइज हम लोग बेहतर हैं, अच्छा हम लोग बेहतर हैं, सपोर्ट उनका नेटवर्क, उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वहां पे क्या कहते हैं, भाई मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इंडियन और उसके बाद वो इंट्रोड्यूस करवाने के बाद पता है कहते हैं यार ये मैंने करा दी, अभी मेरी जिम्मेदारी नहीं, दोनों तरफ ही जिम्मेदारी नहीं लेते, तो वो अगला कहते हैं यार। लेकिन इंडियंस जो है ना वो इंट्रोड्यूस किया, वो कहते हैं कि दे आर द बेस्ट। अच्छा सिर्फ डिफरेंस क्या है, अगर आप दो चीजों में कंपैरिजन करें, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, इवेंचुअली हार्ड वर्क जीतता है, स्मार्ट वर्क नहीं जीतता। अगर लॉन्ग टर्म में स्मार्ट वर्कर्स नॉट हार्ड वर्कर्स, इंडियन स्मार्ट वर्कर्स और हार्ड वर्कर्स, so that's the basic एग्जैक्टली हार्ड वर्कर प्लस सबमिसिव, सर फेंक के काम करेंगे। जी सर, मतलब ईगो नहीं है, पाकिस्तान में बहुत ईगो है। अगर वो इनसिक्योर है वो बता देंगे मैं इनसिक्योर हूँ, पाकिस्तान इनसिक्योर है वो क्या करेगा, वो एक तीसरे बंदे के पास जाता है और आप जाके बताता है कि मैं इन 2 बंदों से इनसिक्योर हूँ, तो डायरेक्टली बात नहीं करेंगे। ये दिस इज द ओनली डिफरेंस, दैट दे आर बीइंग they're not being honest at times. We're not saying we're not bad mouthing कि वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं अच्छी, इतने जबरदस्त लेवल पे वो लोग काम करें। मेरे ख्याल से फाइनेंस के तो सारी पाकिस्तानी CFO लेवल पे पाकिस्तानी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टर्स उन CFOs पाकिस्तानियों को प्रमोट नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से शायद उनको प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल रहा। एक बात ये भी हो सकती है, प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल रहा। आप ये देखें कि वी वर द ओनली फर्स्ट पाकिस्तानी कंपनी जिसको सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी की तरफ से फर्स्ट डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म का एनओसी मिला। अभी मिला हुआ है गाइटेक्स की वजह से। नहीं, सऊदीया में वी मेड अ प्लेटफॉर्म जिसमें आप जब लैंडिंग करते हैं ना, क्योंकि वी आर वर्किंग इन अ फिनटेक सेक्टर, ये कार्ड इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, हमारी फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स भी हैं, हमारे वॉलेट्स भी हैं। तो हमें एक चैलेंज दिया गया कि वी वांट टू बिल्ड समथिंग, एक सऊदी कंपनी ने, फाइनेंसिंग कंपनी, उनकी स्टॉक लिस्टेड, वी वांट टू बिल्ड समथिंग जिससे ना हम लोग SME या बिजनेसेस की डिसीजन मेकिंग जो है ना लैंडिंग के लिए, वो 7 दिन से उठा के कुछ मिनटों में ले आए। वी डिड इट, और वो 7 डेज से उठ के 3 मिनट्स के अंदर आई। 3 मिनट्स में आ गई। 7 डेज भी बड़ा अच्छा, कोई बहुत स्पीडी बंदा हो ना तो वो 7 डेज में करते हैं, वरना तो 14 दिन। 3 मिनट्स में वो डिसीजन मेकिंग होती है। और ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म है पूरे GCC का, ठीक है, कि ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया, और सामा ने जो कंपनी जिसको NOC दी है, एनी कंपनी, और वी आर द कंपनी और पाकिस्तानी कंपनी जिसको NOC मिला। We can develop it for any this was financing company. GITEX. No. This was after GITEX. This was after Leap actually. Leap 2022 में जो Leap You हुआ got था. this investor, Saudi investor via Yes. फिर again importance of platform. Yes. Validation मैम सारी हमारा secret sauce के हम exhibition कोई नहीं छोड़ते. We spent heavily on exhibition last year.
हमारी एक बहुत छोटी कंपनी है, बट वी स्पेंट अराउंड 25 मिलियन ऑन एग्जीबिशंस ओनली लास्ट ईयर भी, उससे पिछले साल भी हम लोगों ने अराउंड 20 मिलियन, इस साल भी हमारा को 45 मिलियन। अगर आप जाइटेक्स पे देखते तो शायद वी आर द ओनली पाकिस्तानी कंपनी इस कैटेगरी में जिसका प्राइवेट स्पेस और पाकिस्तानी जो आपका जो था ना जो पवेलियन उसमें जिसमें जो आपके स्टॉल्स थे उससे डबल ट्रिपल साइज का हमारा अकेला स्टॉल था। सो बट द थिंग इज अगेन कि बिजनेस सिक्योर वहाँ बिजनेस सिक्योर करते हैं बिकॉज दे टेक यू वेरी सीरियसली लुकिंग एट योर मतलब आप कह लें कि दुनिया में दिस इज वेरी नॉर्मल दैट स्पेशली इफ यू गो इन द मिडल ईस्ट दे सी व्हाट यू वेयर, दे सी व्हाट यू ड्राइव, दे सी व्हाट काइंड ऑफ स्टाफ यू हैव, आपके पास डाइवर्सिटी है, जो दिखता है वो बिकता है। मतलब आपके पास आपने खाली पाकिस्तानी रखे हुए हैं कि आपके पास डाइवर्सिटी है, लेबनीज हैं, मोरक्कन रखे हुए हैं, अरबिक स्पीकिंग, how the founders that's are. how they look into us. They definitely they look into each and everything. Okay, so Zain and Jawad, there are lots of trillions of Pakistanis boys you must be meeting जो चाहते होंगे यार मैं भी जवाद बन जाऊँ, मैं भी Zain बन जाऊँ। बहुत सारे ऐसे होंगे और वो बहुत obvious होगा उनकी बॉडी लैंग्वेज में। For them कोई दो क्वालिटीज जो आपकी हैं जवाद और दो क्वालिटीज जो आपकी हैं Zain, जिनकी वजह से you are able to resist. जवाद अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि आप लोगों जो ये इसको अचीव करना चाहते हैं, आई वुड नॉट से कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, वी आर स्टिल इन द प्रोसेस। सिर्फ एक चीज़ नहीं छोड़ी, दैट इज़ ट्रस्ट, कि यार दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव टू अचीव नो मैटर व्हाट हैपन्स। उस पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपने काम पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, यू हैव टू ट्रस्ट अल्लाह। वेरी वेरी सिंपल थिंग, आप एक दफ़ा उस पर रख लें कि यार मैंने शुरू कर दी है, नो इट्स ऑल ऑन हिम, यू विल अचीव इट इवेंचुअली। और तीसरी एक और चीज, सॉरी, यू हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। मान गए ये? हाँ, वो तो कह रहे थे मैं थोड़ी सी माथे आंख नहीं मैं करता हूँ, मतलब माथे पे आंख में अपने स्टाफ के साथ रखता हूँ, नॉट विद द पीपल आउटसाइड। कहते हैं ना अम्मा सख्त हुई तो हाँ, नहीं वो है, वो करना बैक कॉप बैड कॉप। तो आपको गिव जो जब आप सोसाइटी को, हमें जो बिजनेस आ रहा है ना, हमें किसी एडवर्टीजमेंट और उससे ज्यादा इससे आ रहा है, गिविंग बैक टू सोसाइटी। वी नेवर नो, एकदम से कॉल आती है यार दिस इज समथिंग वी वांट टू डू, इतना बजट है यार ये प्लीज कर दो। और ये मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंस कंपनी सऊदी अरेबिया की, उनके साथ मैं बात करा, मैंने कहा यार तुम लोग एडवर्टाइज नहीं करते, क्या करते? कहता बस दुआ करते हैं आ जाता बिजनेस। तो दिस इज द सेम थिंग दैट वी हैव एक्सपीरियंस्ड। लिस्टेड कंपनी है वो, इट्स अ सऊदी स्टॉक लिस्टेड कंपनी। तो मैंने उसके बाद हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि व्हाटएवर वी आर राइट नाउ इट्स बिकॉज ऑफ दैट। माशाल्लाह माशाल्लाह। बट ये आपकी एज पे बात सूट नहीं करती वैसे, मतलब यूजुअली बहुत बड़े होके लोगों को ये बातें समझ आती हैं। जी ज़ैन, योर टर्न। मेरे ख्याल से मैं सेम एज व्हाट जवाद सेड, बट आई थिंक इसको मैं आई विल पुट इट इन अ डिफरेंट वे कि परसिवेरेंस। मतलब परसिवेरेंस ये कि जब हम बहुत बुरे वक्तों में थे, आप जिस तरह आपने पूछा कि 2019 टू 2021, तो वी हैड अ वेरी क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स ऑल्सो एंड लाइक यू नो एम्प्लॉइज। वो आज जो उस वक्त हमारे साथ थे, वो आज सिर्फ एक चीज़ की रिस्पेक्ट करते कि यार ये ना पीछा नहीं छोड़ता। अच्छा, वो एक क्वालिटी जो परसिवेरेंस की है ना, आप यकीन करें वो परसिवेरेंस की, जिस तरह मैं अभी आप लोगों के अंदर ना आप लोगों की पूरी सीईओ की हिस्ट्री देख रहा था कि हाउ यू पीपल, तो मुझे बड़े मज़े की एक चीज़ बताई साकिब साहब ने कि जी मियां मंशा का इंटरव्यू हमने किया, इट चेंज्ड एवरीथिंग बिकॉज ही हैज़ नेवर गिवन इंटरव्यू टू एनीवन। और मियां मंशा को कौन नहीं जानता? आप यकीन करें कि वो जो मियां मंशा के इंटरव्यू के साथ इन्होंने एक बात की कि 2 साल लगे में टाइम, ठीक। अब वो सोचे वो 2 साल क्या है, वो 2 साल परसिवेरेंस है। इनको ख्वाब आनी थी क्या है कि मुझे इंटरव्यू मिल गया तो क्या बन जाएगा। तो वो परसिवेरेंस हम लोगों को लगता है कि अच्छा यार, जिस तरह मैंने एक खोखा डाल लिया चाय का, मैं इसको अब चला रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये तो $1 बिलियन बिजनेस नहीं बन सकता। लेकिन अगर आपका माइंड है ना कि नहीं ये $1 बिलियन, आप विजन तो करो ना। मतलब मैं दुआ मांगता हूँ अल्लाह $1 मिलियन दे दे, $10 मिलियन दे दे, लेकिन अंदर है पॉसिबल तो वैसे किसी रास्ते होने, तो फिर कैसे होगा? अब चाहिए और वो मिलता है ऑनेस्टली। सिर्फ वो जो बिलीव होती है ना, वो टाइम के साथ स्ट्रांग होती है। ये सारी माइंडसेट की है। तो परसिवेरेंस इज वन थिंग। सेकंड, जो जवाब ने कहा कि डर, मैं ये कहता हूँ कि उस डर को आपसे ना डर लगना शुरू हो जाता है इफ यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ व्हाट पीपल विल से। एक्चुअली ये मैटर करता है अब आके हमें, पहले मैटर नहीं करता था यार लोग जो अब वो कहते हैं ना, तो हम थोड़ा सा स्लो, अब लिटरली हम एक्चुअली स्लो हो गए। अब मैं और जवाद हम स्लो, एक्चुअली जवाद हम स्लो हैं। अच्छा, ये पहले ज़ैन की एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। रिसेंट थोड़े अरसा पहले ना एक कंपटीशन चल रहा था, दिस इज समथिंग वी केम टू नो इन द मॉर्निंग टुडे।
उसमें एक इंडियन स्टार्टअप, दे वन दैट कंपटीशन, और वो क्या करता है, अचार बनाता है, सिर्फ अचार बनाता है, उनको फंडिंग भी मिल गई, टेक्नोलॉजी कोई नहीं है, और वो कहते हैं टेक्नोलॉजी, उससे पूछा जी टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी इसमें लाएंगे अचार बनाने में, क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है? वो जीत गया, वो कंपटीशन जीत गया और उनको फंड भी मिला, वो कोई इकोसिस्टम से जीता, लोगों से जीता। अच्छा देखें क्या था, जो अभी जैन बात कर रहा है ना, इंडियंस में बहुत अच्छी बात है, जैसी मर्जी लैंग्वेज हो, टूटी फूटी अंग्रेजी बोलें, लेकिन वो बोलते हैं, दे एक्सप्रेस। हम लोग सबसे पहले सोचते हैं यार मैं पेंडू एक्सेंट हंसना शुरू कर देगा, यार सुनो तो वो क्या कह रहा है। English is not the way to judge anyone's qualification. Exactly, it's a language. yes. It's a medium. It's a language. It's a medium. अंग्रेजी पेंडू में बोल रहा होता है, हाँ, यार सुनो तो सही। मैंने बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स देखे हैं जो जज करते हैं कि इसको अंग्रेजी नहीं सही बोलने आती। लुक एट द आइडिया, व्हाट आई हैव सीन, अभी ये जो इंडिया का रॉकेट गया था, उसमें आपने उनकी टीम देखी, दे वर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर इंग्लिश, बट दे डिड दैट मैन। सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज व्हाट दे हैव डन। ये छोटा, आई थिंक ये कल्चरल थोड़ा सा हमारी ये कैरेक्टर बिल्डिंग और ये चीजें, आई थिंक वो हमें ना आजादी के बाद वो उधर से मिली है, वैसा कि वो कि अंग्रेज है तो मतलब जिस तरह हम अब क्लब्स में चले जाते हैं, जो यहाँ पे आपके जो हेल्थ क्लब्स हैं, जिमखाना क्लब हो गए, तो ये स्टैंडर्ड्स बन गए हुए हैं। तो उसके अंदर वो जब तक मजा नहीं आता ना, जब तक आपको वो स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रेस हैंडलिंग, यू स्ट्रेस हैंडलिंग बहुत मजे की है। नहीं स्ट्रेस हैंडलिंग बहुत मजे की है इसकी। स्ट्रेस हैंडलिंग बहुत, स्ट्रेस हैंडलिंग इस तरह से होती है कि कोई भी स्ट्रेस हो, मैं फेसबुक खोल लेता हूँ, बस देखते रहता हूँ, और ये आके मेरे साथ बोलेगा यार ये होगा, मैं कहता हूँ हाँ हो जाएगा। अच्छा, आप हो जाएगा। इतने बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं, तो वो बैठे, हम वो एक काबीना सी लगाई होती है, 3-4 लोग होते हैं ट्रस्ट के, तो वो बीच में इसकी वीडियो चल रही है, तो इसको तो देखेंगे ना, तो आगे से बस इस तरह हंसेगा बड़े मिसने तरीके से ना, बट ही कीप ऑन वाचिंग। एक्चुअली हम लोगों ने, लेकिन हम जितने भी बड़े सीईओज और कंपनी ओनर्स से मिले हैं ना, वो एवरीवन सेज कि अगर आपके पास एक ऐसी डिस्ट्रैक्शन ही ना मौजूद जो कि आपको एंटरटेन कर दे फौरन, तो फिर तो फिर आप स्ट्रेस हैंडलिंग। अच्छा, एक्चुअली मेरा ना अटेंशन टाइम स्पैन कम है। देखते हैं आप स्ट्रेस में, नहीं अटेंशन देखते हैं। अच्छा, मेरा अटेंशन टाइम स्पैन कम है। मुझे लगता है कोई और कुछ सीखेगा नहीं, बच्चा ये नहीं सीख जाएंगे। तो टाइम स्पैन मेरा बहुत थोड़ा है। मैं सिर्फ जो मेरी एक्चुअल बात सुनने वाली तो उसको सुनता हूँ, उसको समझता हूँ और आई टेक डिसीजन, बाकी बस गया, बाकी बोल। He is definitely a genius in this. ये तो जो ऑफ द रिकॉर्ड, he is a genius. मैंने कहा ना, जब काम नहीं हो रहा तो इनको स्ट्रेस आएगा, चांद रात आएगी तो बास्केट आएगी ना। अच्छा, आप बताएं मेरी स्ट्रेस हैंडलिंग कैसे होती है। अच्छा, मैं अभी वैसे नहीं बता सकता कि कैसे करता हूँ स्ट्रेस हैंडल, लेकिन on another aspect, I think मेरे लिए I need to have a bigger thrill in order to get the stress down. वो bigger thrill क्या है? गाड़ी थोड़ी सी तेज चला ली, जो कि गलत। नहीं बंदा से हम फड़काने वाला नहीं, वैसे मशहूर तो होते हैं वैसे कश्मीरी बट जो होते हैं इस बारे में, लेकिन वी जस्ट वांटेड टू, आई थिंक द स्ट्रेस हैंडलिंग पार्ट इज कि आई वांट अ बिगर थ्रिल इन ऑर्डर टू गेट माय नर्व्स कूल डाउन। तो वैसे तो ये इसके अंदर भी है ये चीज, लेकिन जो विजिबल है वो यही है कि रील्स, और क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत चल रहा होता है ना, वो रिलैक्स करता है माइंड को, इट्स द फनी स्टफ। तो अब मैंने भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी वो साथ साथ थोड़ा अडॉप्ट करने का, नहीं वो करता। अभी मेरे ख्याल से इसी साल शुरू करना, फॉरवर्ड करना शुरू किया, नहीं कभी जिंदगी में नहीं हमने शेयर किया आज तक। ओके, व्हाट इज सक्सेस टू यू एंड देन टू यू? अच्छा, मेरे लिए सक्सेस ये है, देखें, मनी, पैसा, दिस इज नॉट अ सक्सेस फॉर मी। सक्सेस इज समथिंग कि जिसमें वट एवर आई हैव इट शुड बी शेयर्ड विद समवन, ताकि वो एक लेगेसी क्रिएट हो, नॉट जस्ट विद माई किड्स, with someone more capable, even capable than my kids. तो this is my success कि मैंने कुछ ना कुछ किसी को legacy create कर ली किसी भी सूरत में, कि वो मेरी वजह से he has achieved, or he or she or anyone has achieved something. This is the success that is something that I want to have. मेरे ख्याल से I think मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉन मुस्लिम कंट्री में, मैंने बहुत टाइम चाइना में 16 साल गुजारे हैं, तो मैं बहुत दूर था रिलीजन से। मैंने ये चीज़ देखी है कि माई वाइफ एक्चुअली ब्रॉट मी बैक टू माई रिलीजन एंड माई फादर, माई मदर। तो मैंने एक चीज़ सुनी थी कि मतलब आफ़ियत मांगनी चाहिए हमें, तो मैंने मैं आफ़ियत के, मैं आई रियली बिलीव, जो जवाद ने भी कहा कि द कंप्लीटनेस इज नॉट इन द मनी, बट जो आपकी विरासत में आप क्या छोड़ के जा रहे हैं और लोग आपको कैसे याद रखेंगे,
क्योंकि sometimes we are unaware of our like you know our gestures. मतलब मैं अच्छा बनना भी चाहूँ तो मेरी पर्सनालिटी में वो चेंजेस आ चुके हैं कि मैं नहीं अच्छा बन सकता, और ये बुरा बनना भी चाहे तो इसकी पर्सनालिटी में ऐसे चेंजेस आ चुके हैं. तो वो अशफाक का बड़ा अच्छा सेंटेंस था कि आप अगर फूल नहीं तो कांटा बन जाएंगे. तो सिर्फ क्योंकि बीच की कोई चीज़ नहीं, देयर इज नो चॉइस, आइदर फूल या कांटा. So when you are a proud Kanta, and but when you realize that you are a Kanta means that you want to change into a fool. That's a beautiful. So आपकी subconscious वाली बात भी एक आपके साथ कल हो रही थी. तो subconscious, अगर आप conscious हो गए ना, इसका मतलब कि you are now going to change yourself. कई लोग तो कहीं तो मानते ही नहीं ना कि वो कांटा है. मैं मानता हूँ कि हाँ हम लोग इस तरह कांटा बन सकते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कौन ये इसको कांटा थोड़ी. मैं तो बड़े वाला फूल हूं. सो आई थिंक सक्सेस इज कि आपकी जो है ना कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस आप वो कहते हैं ना कि शोधे नहीं हो जाते, लाइक यू नो वंस यू बिकम समथिंग, दिस माइट बी अ रॉन्ग वर्ड टू से. बेगमात एग्जिस्ट करती हैं. बिल्कुल करती हैं. बच्चे भी हमारे इक्वल ही हैं, बच्चे भी इक्वल हैं, बेग में भी इक्वल हैं. आप भी घर जाते हैं, उनको भी टाइम देते हैं. ये सबसे बड़ी शिकायत है. माय वाइफ इज अ डॉक्टर, शी इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, और इवन वो प्रोफेशन के साथ साथ वो मेंटेन करती है, लेकिन वो मेरे साथ उसकी सबसे बड़ी शिकायत ही है टाइम. मेरी तो मैं कहता हूँ मेरी वाइफ तो जन्नत ही है. I have to marry, if I have to marry her again, I will definitely marry her. I will marry her like as many times as possible, because एक तो love marriage है, दूसरा she was a fashion designer and she gave up her career so that I can pursue my entrepreneurship. तो क्योंकि मैं भी डॉक्टर था, तो 2019-20 में आप लोगों को झटके लगे. हाँ. तो किसी की बेगम ने खुदा मेरे ख्याल से 15 से झटके लग रहे थे पहले. मेरे 16-17 मेरी बेगम ने उस वक्त शी टूक अ बोल्ड स्टेप. उसने कहा कोई मसला नहीं, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, यू टेक केयर ऑफ योर बिजनेस. आपकी बेगम एंड माय वाइफ इज फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, जस्ट लाइक जवाद. हम सब बड़े अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से. लेकिन जब हम एंटरप्रेन्योरशिप पे आए तो मैं और जवाद हमने एक फैसला किया था कि घर से सपोर्ट नहीं लेनी. वेरी गुड. ठीक है. और ये और हालांकि क्योंकि आपके घर में आपकी फंक्शन पे तो गाड़ियां भी बढ़ी हैं, खाने भी अच्छे चल रहे हैं, बट हम लोग ईद पे हमारे वालिदैन मतलब ये कहते हैं कि मतलब हमें आज तक किसी ने ताना नहीं दिया ईद पे भी कि पूरा साल मेहनत करके घर क्या लेकर आते हो. हमारा हमारी वाइफ्स ने, हम नहीं बच्चों को खिलौने नहीं दिला सकते थे. मेरे ख्याल से मैं पौने 2 साल स्कूल नहीं गया अपनी बेटी. खूबसूरत बात है. सो दिस आई थिंक यहाँ पे वाइफ्स की सपोर्ट बहुत जरूरी थी. आज मेरे ख्याल से हम शायद एक्सप्रेसली वर्ड्स में बहुत कम करते होंगे, लेकिन आई कैन टेल यू दिस आउटसाइड से कि ये अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, और ये भी देख सकता है मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ. क्यों? बिकॉज हम उनके लिए उनकी बेस्ट जो उनको पसंद है लेके देते हैं. गाड़ी चाहिए, अभी कोशिश करें घर की भी, मतलब बच्चे कौन से स्कूल में, ये सारे बड़े बड़े डिसीजन. हम तो छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं, किसको रखना है, किसको निकालना है, कौन सी कंपनी में जाना है. हाँ, तो वो बड़े डिसीजन उन्हीं के आज भी, और वो बड़े डिसीजंस के लिए जो हम कमाते हैं वो सब वही देख, मतलब और हमारे पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं. इवन जब मेरी शादी हुई तो माय वाइफ वाज इन 4th ईयर, नाउ शी हैज़ डन FCPS, और शी हैज़ बीन अ बिग सपोर्ट फॉर मी फॉर ऑल द टाइम. और इवन जाइटेक्स पे शी वाज द वन जिसने गोल्ड दिया था कि भी बेचो. माओ की जो देखिए, माओ की थी दुआएं, और ये भी माएँ हैं, लेकिन हमारी जो अपनी माएँ हैं उनकी दुआएं थी, और हमारी जो वाइफ्स इनकी सपोर्ट, और हमारी वाइफ्स की सपोर्ट, मेरे ख्याल से प्यार, सपोर्ट, उन्होंने घबराने नहीं दिया हमें. मेरे ख्याल हौसला इज द मेन. पगली रुलाएगी क्या? हौसला. और बात ओके. और एंड नाउ अब आप लोग जब उनको टाइम नहीं देते तो आपको नहीं लगता कि गलती होती है? उनको टाइम नहीं देते, बच्चों को टाइम नहीं देते. वो इतना नहीं कंप्लेन, लेकिन बच्चे जो है ना वो, क्योंकि इसकी बेटी और मेरी बेटी 1 साल का फर्क है, और फिर बेटों में भी 1-2 साल का फर्क है. तो वो जो ये एक्सपीरियंस करता है ना, वो बाद में, क्योंकि इसकी बेटी और बेटा दोनों बड़े हैं, तो मेरी बेटी और बेटा दोनों 1-1 साल छोटे हैं इसकी बेटा बेटी से, तो ये मुझे बताता है कि यार ये हो रहा है. तो अब तुम्हारे साथ एंड देन आई स्टार्ट फीलिंग इट ऑल्सो दैट हाँ यार ये हो रहा है. सो किसी ना किसी तरीके में हम एक दूसरे को भी हेल्प आउट करें. कभी हम कहते हैं अच्छा यार चल यार यू शुड स्टे मोर, लेट मी कवर अप दिस टाइम, then he will like अच्छा यार you should stay more, I will cover up for you. तो ये हमारी अपनी एक इंटरनल इमोशनल जो एक चल रही होती है ना गेम, और ये कंपनी बाहर से जो मतलब 200 एम्प्लॉय हो तो वो नहीं फील करता. ये पीपल वेरी क्लोज टू अस आल्सो, दे डोंट सी के अच्छा यार राइट नाउ इमोशनल और मेंटल बैगेजेस क्या है ना, क्योंकि देयर इज अ बिग इशू कि आप
फिल्म बनती हुई नजर आ रही है. Did you guys ever thought? नहीं, अभी तक कोई ऐसा अभी ऐसा थ्रिल नहीं आया. ज़्यादा बड़ा थ्रिल आएगा फिर. वो फिल्मों में होता है. वैसे आए हुए हैं वो है, लेकिन आई थिंक वी हैव हैप्पी प्रॉब्लम्स. आई विल नाउ से एंड वी शुड कीप इट एज हैप्पी प्रॉब्लम्स. ओके, आपने बता दिया सक्सेस का. व्हाट डू यू थिंक अबाउट हैप्पीनेस? फॉर मी हैप्पीनेस इज दो चीज़ों में आई फील हैप्पी. एक व्हेन आई एम विद माई फैमिली, विद माई किड्स, जब उनको मैं एक्सक्लूसिव टाइम दे रहा होता हूँ. दिस इज वन ऑफ द हैप्पीनेस व्हिच इज वेरी रेयर, which is very दोनों rare. के लिए ना बहुत ही रेयर. और दूसरी चीज़ ये है कि when I am sharing something, sharing means this knowledge किसी के लिए, क्योंकि sometimes ना आपके पास कुछ लोग आते हैं कि they want to do something, तो instead of कि मैं कहता हूँ यार इसको पैसे दो, I try to help them with the business कि यार मैं तुम्हें ये चीज़ करवा देता हूँ, एटलीस्ट तुम जो ना एस्टैब्लिश हो, जो तुम्हें आगे किसी के हाथ फैलाना ना पड़े. How to fish rather than giving him. Yes, exactly. Teach plus I give them equipment. Very good. This is the thing जिसमें मुझे ना थोड़ा सा I feel very happy. And you feel like good. Yes. Good. You Zen. मैं भी अगेन गिविंग बैक टू द सोसाइटी, मतलब फाउंडर्स के साथ बैठ जाते हैं, उनको हेल्प करते हैं, स्टार्टअप्स के साथ हाँ, उसमें जवाब और मैम इकट्ठे ही होते हैं. और जिस तरह ये सपोर्ट करता है बहुत से लोगों को, इसको तो मेरे ख्याल से फ़ोन नंबर रक्षों के पीछे किसी ने शायद लिख दिया. उसको बड़ी बड़ी अजीब कॉलें आती हैं. वो कहीं तो तबलीग पे जाते हैं, वो वापस आते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, कहते जी पैसे नहीं है. हमने कहा यार तुमने जो लाख रुपए की टिकट खर्च के तुम गए कैसे थे, अब घर में फंस. तो बट वी नेवर से नो टू पीपल मोस्टली. तो लेकिन और मैं आपको बताऊं, ये जब हम कहते हैं ना वी नेवर से नो टू पीपल, यकीन करें लिंक्डइन पे भी पैसे मांगते हैं लोग. हाँ, लिंक्डइन पे भी हमारे साथ हुआ है. लिंक्डइन पे पैसे मांगते हैं, वो कहते हैं लाख रुपए तो दे ही देंगे ना. लिटरली मैं आप कहेंगी तो मैं मैसेज शेयर कर दूंगा. तो एक तो ये बहुत खुशी की बात. दूसरा जो अगेन कि बच्चों के साथ और जो वाइफ के साथ या वालदैन को या जो बहन भाई हैं, जब इनके साथ वो एक्सक्लूसिव टाइम मिलता है ना, जिसमें मुझे ये पता होता है एक्सक्लूसिव टाइम, मैं आपको बताता हूँ है क्या, जिसमें मुझे पता है ये मुझे कॉल नहीं करेगा, मैं इसे कॉल करूंगा. ये एक्सक्लूसिव टाइम ये बहुत रेयर होता है मेरे ख्याल से. हमारी बीवियां भी मेरे ख्याल से कहती हैं फोन नहीं आया. पक्की बात है, फोन छोड़ के जाना है जहाँ पे. तो आई थिंक वो एक बड़ा खुशी का टाइम होता है. योर मैसेज ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म फॉर यूथ. कैमरे में देख के पहले आप. अच्छा, मैसेज ऑफ होप मेरी तरफ से ये है कि दे हैव टू बिलीव इन देमसेल्फ. वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. पाकिस्तानीज जो हैं वो अगर आई वुड से कि दे हैव द ब्राइटेस्ट ब्रेन इन द वर्ल्ड. आप जैक मा को देख लें, मार्क ज़करबर्ग को देख लें, बिल गेट्स को देख लें, ये कुछ ऐसे नहीं है कि जो स्पेशली किसी सर पे सींग इनके हों या कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ लेके हैं. दे आर जस्ट लाइक अस. वी कैन, इफ़ दे कैन डू इट, वी कैन डू इट. तो हमें कल को इनसे बड़ी एम्पायर्स, इनसे बड़ी कॉरपोरेट बनानी है, एंड इट इज़ पॉसिबल. दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है. यू हैव ट्रस्ट, यू मस्ट हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन अल्लाह, और अपने माँ बाप की दुआओं के साथ आप कोशिश करें एंड यू विल अचीव इट इंशाल्लाह. लोगों के ऐब जो है ना आप छुपाना शुरू कर दें तो you will get this elevation. और ऐब is not that you're telling that you're doing wrong. No, ऐब is like ऐब, जो वाकई ऐसी गलतियां जो अनफॉरगिवेबल हो, आप वो छुपाना शुरू करते हैं. राज, वो वाला राज छुपा लें. आप यकीन करें आपको अल्लाह ताला एलिवेशन दे देगा. 1 सेकेंड, आई थिंक नोबडी कैन से इट बेटर देन वाद सिराज साहब ने एक शेर कहा था कि नजरा दी रखवाली रख, ऐनक पावे काली रख. वाह वाह. नजरा दी रखवाली रख, ऐनक पावे काली रख, इक्को यार नाल यारी ला, दुश्मन पावे चाली रख. ऐबा उत्ते पर्दा पा, प्याली उत्ते प्याली रखना. दिस इज द सेंटेंस कि ऐबों पे पर्दा डालेंगे तो प्याली पे प्याली खुद ब खुद आ जाएगी. जग देंदा है मिसालां लोकां दियां, तू अपना आप मिसाली रख. सो इफ यू विल नॉट बिलीव कि आई कैन बी द बेस्ट, तो लोगों ने तो नहीं आके आपको बताना कि यू विल बी द बेस्ट. यू हैव टू बिलीव यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट. यू हैव टू एनविजन कि यार मेरा 50 कनाल का घर होगा, उसके अंदर मेरी 60 किस्म की गाड़ियां खड़ी होंगी, एंड आई विल हैव दिस डाइनिंग टेबल जहां पे मेरा पूरा खानदान बैठा होगा, एंड आई विल बी द वन विल बी आई विल बी द किंग ऑन दैट टेबल, एंड आई विल डू एवरीथिंग इन माय पावर टू हेल्प पीपल आउट. आप सोचते ही नहीं है. आप सोचते हैं बस यार मेरे पास पैसे आ जाएं तो मैं कर्जा और डाल के रिवो ले लूंगा, 125 है तो 250 सीसी ले लूंगा, मैं घर बड़ा ले लूंगा, बहन की शादी. पॉइंट इज कि आपने इन्विजन क्या किया. आप एक सर्टेन पॉइंट तक इन्विजन करें कि ये कमरा तो दूसरा कमरा बना लूंगा, दूसरा तीसरा. पहले दिन क्यों नहीं बिल्डिंग सोचते. you have to enlarge, you have to make your vision large.
और साथ मदद अल्लाह की है. आपका जो रिस्क लिखा हुआ है वो never say that you did it. It's all like आज हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये भी अल्लाह की मर्जी से दे रहे हैं. So be very strong with your faith. जो जवाद ने भी कहा कि faith is the ultimate. Thank you so much Zain and Jawad. This is one of the happiest interview I have done. बहुत मजा आया और उसमें हमें बहुत ज्यादा मजा आया. हम लोग बहुत कम इंटरव्यू साथ देते हैं लेकिन क्योंकि मोस्टली हमारी लड़ाई हो जाती है इंटरव्यू. कोशिश कुछ थी मगर फिर चलो पर्दा पा लिया खा लिया पा लिया. Did it well. मैंने बहुत सारे लोगों से बहुत ज्यादा चीजें सीखी बट आज जो मैंने सीखा वो बहुत मजे का था एंड दैट इज द एबिलिटी टू रीस्टार्ट. सेइंग 800 रिजेक्शंस मैं 800 गिनना शुरू कर दूं ना 8 मिनट लग जाएंगे. सो एंड जस्ट इमेजिन हाउ मेनी ईमेल्स, हाउ मेनी फोन कॉल्स, हाउ मेनी आवर्स you have spent into exactly. it. And we have even traveled to different cities to get rejection. Even to different countries also. और एक छोटी सी बात आपको करूं, one of a person जिसने हमें रिजेक्ट किया था, I'm not going to say the name. No, we do not disclose his name. उसके one of his business partner called me a couple of weeks ago. उसने कहा यार हमारी कंपनी परचेज कर लो. Tables turn, and we wish we would have been. We have the ability to purchase it also, but we are not doing it because we know the people we are because the people we are purchasing from वो थोड़े से ना tricky से feel होते हैं. But anyways वो tables उनके लिए भी turn होती हैं, वक्त अच्छा आता है सबके ऊपर. देखिए जी वो फिर जो मिसाली रख जब आप खुद को मिसाली खुद के लिए बना लो ना, that is the agenda of the life. So what I have learned from you guys today is to restart, ability to restart. Exactly. एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 800 दफा. और नहीं अच्छा वो 800 दफा फिर 2019 की स्टोरी अलग, 2021 की. अच्छा इसमें हम लोग ना नेचर से सीखते हैं. एक चीज आप ज़हन में रखें. आप यू माइट हैव हर्ड अबाउट अ ईगल नेस्ट. ईगल सबसे ऊपर अपना नेस्ट बनाता है लेकिन जब वो वीक हो जाता है वो क्या करता है, वो अपने सारे फेदर्स उतारता है और तोड़ देता है. फिर ऑटोमेटिकली आती. सो इट्स अ पेनफुल. सो इट्स द सेम थिंग. हम रोते थे गाड़ी में, चीखें भी मारी हैं जब फिल्मों में नहीं होते यार क्या हो रहा है, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए. पैसे मांग के थक गए थे अपने दोस्तों से और हमारे दोस्तों ने बड़ी हेल्प की है हमारी. और मतलब आई थिंक जब फंडिंग आई थी तो हमने 1 करोड़ 75 लाख रुपए उतारा था दोस्तों. तो जस्ट इमेजिन कितने दोस्त हैं. 5 लाख नहीं लेकिन और हर एक को उम्मीद लगाई थी यार इस दफा तुझे दे देंगे लेकिन यकीन था देना तो दे दिए. नेटवर्थ. So number 1 is ability to restart. Number 2 is the way you guys accept each other. इसमें तेरे अंदर ये भी खामी है सुन ले और मतलब मेरे अंदर ये चाहिए देख मैं तो मतलब the way you do it is really remarkable. And number 2 is a lethal combination of a good cop and a bad cop. Now मेरे ख्याल में that is very much doable and workable ना. So I wish good luck to my team. Thank you very much. And I am assuming 50,000 employees Inshallah. of my team. Inshallah. 5 years down the road, 10 years down the road, that doesn't ये वाला matter. इंटरव्यू बहुत चलेगा आपका फिर अच्छा. उससे, you know, it's going to be. फिर हम ये कहेंगे, then I'll be calling you and you'll be calling me. Inshallah we will. Then we will Thank you host so much for Thank you. coming to the show. very Thank you. much.